ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وأخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة وقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه يقللها اما بعد انتہائی مختصر سی حمد و صلات کے بعد صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جناب ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ جمعے کے دن ایک تھوڑا سا لمحہ ایسا آتا ہے کہ اگر انسان اس لمحے کو اپنی عبادت میں پالے اور اللہ سبحانہ و تعالی سے اس لمحے میں بھلائی کا سوال کر دے تو اللہ سبحانہ و تعالی اسے وہ بھلائی عطا فرما دیتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے تھوڑا سا اشارہ کر کے دکھایا اور کہا کہ وہ وقت کوئی بہت سارا نہیں ہے بلکہ بہت تھوڑا سا وقت ہے جس وقت میں اللہ سبحانہ و تعالی یہ برکات کی صدائے سن لیتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمتوں کو پا لیتا ہے. چونکہ یہ جمعے کے دن ایک گھڑی ایک ساعہ ایک لمحہ ہے لہٰذا انسان کو جمعے میں وہ گھڑی ڈھونڈنے کے لیے اپنے آپ کو زیادہ عبادت میں لگا کے رکھنا چاہیے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں کامیابی اور کامرانی مقدر ہو اور اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں انسان کا درجہ انتہائی زیادہ بلند و بالا ہو جائے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس بات کی مقتضا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جمعے میں جو بہت زیادہ اہتمام کا حکم دیا وہ یہ کہ یہ چند مختصر سے جو لمحات ہیں اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرنے کی بہت زیادہ فکر کی جائے اور جہاں تک ممکن ہو سکے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں کی طلب میں انسان اپنے آپ کو لگا کے رکھے کیونکہ یہ وہ دن ہے جس میں منہ سے نکلنے والا کلمہ
अगर उस घड़ी में निकल गया जो घड़ी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ मुकर्रब है, तो फिर इंसान के लिए वही सब कुछ काम और कामयाबी की अलामत बनेगी। और अगर यही वो घड़ी आ गई उस वक्त के जब हम इबादत से मशगूल थे और हम इबादत से इन्हमाक करने के बजाय इबादत के ही खिलाफ थे, तो फिर यकीनन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमतों से निकल जाएंगे। देखिए जनाब अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं अन्ना उनासन मिनल अंसारी सअलू रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलम यसअलहु अहदुम मिनहुम इल्ला अतवाहु हत्ता नफिदा मा इंदहु फक़ाल लहुम हीना नफिदा कुल्लु शै अनफ़क़ बियदै मा यकुन इंदी मिन खैरिन ला अदखिरुहु अन्कुम व इन्नहु मन यस्तइफ युइफुहुल्लाह व मन यतसब्बर युसब्बिरहुल्लाह व मन यस्तगनी युगनीहुल्लाह वलन तुअतु अतवाअन खैरन व औसअ मिन अस्सब्र। सही बुखारी की रिवायत है किताब रिक़ाक़ के अंदर। अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हैं अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु। वो रिवायत करते हैं कि अंसार में से चंद लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी चीज का मुतालबा किया, तो जिसने भी आपसे जब जब जो मुतालबा किया, आपके पास जो कुछ होता था आप दे दिया करते थे, यहाँ तक कि वो खत्म हो जाता था। जब सब कुछ खत्म हो गया तो आपने अपने दोनों हाथों से लुटा दिया और सारा का सारा अता कर दिया। फिर आपने फरमाया जो अच्छी चीज मेरे पास है वो मैं तुमसे छुपा कर कभी नहीं रखता, मैं तुम्हें हर चीज अता कर देता हूँ, लेकिन उम्दा बात यह है कि जो तुम में से सवाल करने से बचता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे बचा लेता है, और जो सबर करता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे सबर की तौफीक दे देता है, और जो गिना चाहता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे मुस्तगनी कर देता है, और तुम्हें अल्लाह की नियामत सबर से बढ़कर कोई चीज नहीं मिली। इस हदीस का किताबुल जुमा से ताल्लुक ये है कि जुमे में रिवाज बन गया है कि लोग साइल बन के खड़े हो जाते हैं और अपने सवाल को आम करते हैं और लोगों के सामने अपनी फरियाद रसी करते हैं। तो बेहतर और उम्दा बात यह है कि इंसान इस मौके पे सबर करे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से तलब करे, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अलावा लोगों के सामने अपना मुतालबा करने से इज्तिनाब करे। लोगों की जो जाती हाजात है वो जाती हाजात लोगों के सामने रखना, अगरचे लोग दे देते हैं मुतालबा करने पर, लेकिन ये उम्दा बात नहीं। उम्दा बात यह है कि सवाल करने से बचे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर एतमाद करे, अल्लाह गैब से उसका सहारा बन जाता है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी मुश्किलात को हल कर देता है। लिहाजा ये जो मुख्तलिफ किस्म के ऐलानात करने वाले ऐलानात करते हैं, ये जाती सवाल करने वाले साइरीन सवाल करते हैं, जुम्मे के आदाब में ये मसला दाखिल है कि इन्हें इससे इज्तिनाब करना चाहिए और कोशिश करके इस तरह के ऐलानात से अपने आप को बचाना चाहिए ताकि इंसान अपने आप को भी बचाने में कामयाब हो जाए। सही बुखारी की रिवायत है, जनाब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं, कहते हैं समिअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्नल अब्द ला यतकल्लमु बिल कलिमा मा यतबय्यनु बिहा यज़िलु बिहा फिन्नार अबअद मिम्मन बैनल मशरिक़। फरमाया कि इंसान को इल्म भी नहीं होता कि इंसान अपनी जबान से ऐसी बात किसी वक्त निकाल देता है कि उसके मुतालिक ना तो वो गौर व फिक्र करता है और उसकी वजह से जहन्नम के गड्ढे में इतनी दूर जा गिरता है जिस कदर मशरिक और मगरिब के दरमियान फासला है, उस वक्त गिर जाता है। होता यह है कि हम मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, कभी किसी से कोई बदमज़गी हो जाती है, कभी जबान से कोई कलिमा ऐसा निकल जाता है जो सामने वाले का हमें अच्छा नहीं लगता, तो हम फौरन रिएक्शन देते हैं। ये इबादत के ऐसे लम्हात हैं, इज्तिमा के ऐसे लम्हात हैं कि इसमें दरगुजर बहुत ज्यादा करना चाहिए। अगर कोई कहने वाला कुछ कह भी रहा है तो आप सुन के दरगुजर कीजिए, आप उसको जवाब न दीजिए, आप उसको पलट के वार न कीजिए, आप ये ना समझिए कि मेरी इज्जत पे हरफ आ जाएगा, आप उसे दरगुजर कीजिए और उसका मामला अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हवाले कर दीजिए। बहुत दफा ऐसा होता है कि पार्किंग इश्यूज होते हैं, बहुत दफा ऐसा होता है कि ट्रैफिक इश्यूज हो जाते हैं, बहुत दफा ऐसा होता है कि हम किसी जगह पे बैठ रहे होते हैं, वहां बैठने में कोई तकलीफ हो जाती है, बहुत दफा ऐसा होता है कि हम मस्जिद में घुस रहे होते हैं, दूसरा दूसरे किस्म की बात कर रहा होता है, गलत फहमियां हो जाती हैं। लिहाजा अपनी जबान से बदकलमा कहने के बजाय लोगों को मुआफ कीजिए, लोगों से दरगुजर कीजिए और लोगों को बातों को दरगुजर करने की जज्बा अपने अंदर पैदा कीजिए ताकि लोगों की बातों को जरा दूर किया जाए और आपस में एक दूसरे के खिलाफ कोई बात करने से इज्तिनाब किया जाए। अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सही हदीस है, सही बुखारी के अंदर,
جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کرتے ہیں کہ ذکر رجلا فی من کان سلفا او قبلکم اتاہ اللہ مالا و ولدا یعنی عطاہ قال فلما حضر قال لبنیہ اے ابی کنت لکم قالوا خیر اب قال فانه لم يبتئر عند الله خیرا فسرها قتادة لم يدخر وان يقدم على الله يعذبه فانظروا فاذا مت فاحرقوني حتى اذا صرت فحما فاسحقوني۔ ایک آدمی تھا بیچارہ اعمال صالحہ نہیں کر سکا، بدعملی اس کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری بھی تھی۔ خلاصہ حدیث کا یہ ہے کہ اس نے اپنے بچوں کو بلا کے مرتے وقت بلایا اور کہا بھائی دیکھو میں نے کوئی نیکیاں ویکیاں تو کی نہیں ہے، اب میں جب اللہ کے سامنے جاؤں گا تو میرا تو حشر نشر ہو جائے گا، اللہ نے اگر مجھ پہ قابو پایا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے نہیں چھوڑے گا، لہذا یہ بتاؤ کہ میں نے تمہارے ساتھ حسن سلوک کیا یا نہیں کیا؟ لوگوں نے کہا، بچوں نے کہا کہ ابا آپ نے تو ہمیشہ ہمارے ساتھ حسن سلوک کیا۔ کہا بس میں تمہیں اسی کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ جب میں مر جاؤں نا تو مجھے جلا دینا، دفنانا، اگر مجھے دفن کیا تو میں پھنس جاؤں گا، مجھے جلا دینا، جلانے کے بعد میری راکھ کو پیس دینا اور پیسنے کے بعد کچھ پانی میں بہانا، کچھ ہوا میں بہانا اور کچھ اگر مٹی میں دبانی ہو تو دبا دینا، کیونکہ اگر اللہ نے مجھے پکڑ لیا تو اللہ مجھے نہیں چھوڑے گا، کیونکہ میں نے کوئی نیکی نہیں کی، کوئی اچھائی نہیں کی۔ یہ جذبہ اس کے اندر، یہ فکر اس کے اندر تھی کہ میں نے کوئی نیکی اور اچھائی ذخیرہ نہیں کی تو میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکڑ میں آ گیا تو میری شامت ہے۔ وہ بیچارہ یہ سمجھ رہا تھا کہ آگ میں جلنے سے میں ختم ہو جاؤں گا، ہوا میں اڑنے سے میں اڑ جاؤں گا، پانی میں بہا جانے سے میں بہ جاؤں گا اور زمین میں کچھ دبا جانے سے راکھ کو میری حیثیت ختم ہو جائے گی۔ اب جب اس کے ورثاء نے اسی طرح کیا اور تو اس کو اسی طرح کے معاملے میں داخل کر دیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہوا کو حکم دیا اس کی راکھ واپس کر، ہوا نے ساری راکھ لا کے زمین پہ جمع کر دی۔ پھر پانی کو حکم دیا کہ اس کی راکھ واپس کرو، سمندر نے ساری راکھ لا کے ڈھیر کر دی۔ پھر اللہ نے زمین کو حکم دیا اس کی راکھ واپس کرو، ساری راکھ جمع ہو گئی۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے دوبارہ انسان کی شکل میں پیدا کر کے پوچھا، ہاں بھائی تو کہتا تھا ہم قدرت نہیں پائیں گے، کیوں یہ عمل کیا، کس لیے ایسا کام کیا تھا، کیوں ایسی وصیت کی تھی؟ اس نے ایک بات کہی اور وہ بات یہ تھی کہ اللہ تعالی مجھے یقین تھا کہ میں اگر آپ کی عدالت میں حاضر ہوا تو میں پھنس جاؤں گا، صرف آپ کے خوف سے، آپ کے ڈر سے، آپ کے عذاب سے بچنے کے لیے میں نے یہ عمل کیا تھا، اس کے سوا میرے پاس اور کچھ نہیں تھا، کیونکہ میں آپ سے بہت زیادہ ڈرتا ہوں اور میں دنیا میں بھی بہت زیادہ آپ سے ڈرتا تھا، لیکن چونکہ نیکی جمع نہیں کر سکا اس لیے آپ کے خوف اور آپ کے ڈر نے مجھے اتنا بڑا کام کرنے پر آمادہ کیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سے پوچھا، حالانکہ اللہ جانتا ہے واقعاتاً تو مجھ سے ڈرتا تھا اور اسی وجہ سے یہ کام کیا؟ اس نے کہا جی ہاں اللہ، میں آپ سے ڈرتا تھا اور آپ کے ڈر کی وجہ سے ہی میں نے یہ کام کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس کے لیے ارشاد فرمائے گا کہ ٹھیک ہے اگر تو نے اسی لیے کیا ہے، وما تلافاہ ان رحمہ اللہ، فرمایا کہ پھر اللہ کہے گا جا تجھے ہم نے معاف کر دیا اور تجھ سے ہم کسی قسم کا کوئی بدلہ نہیں۔ تو جمعے کا جو دن ہے وہ اللہ سے زیادہ ڈرنے کا دن ہے، عبادت کا جو وقت ہوتا ہے اس میں خشیت بہت ہونی چاہیے، اللہ کا خوف بہت ہونا چاہیے۔ ہم جو عمل کرنے آ رہے ہیں اس عمل کے اندر جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف پیدا نہیں ہوگا اس وقت تک وہ عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگا۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ اپنی عبادت کے اندر خشیت پیدا کرے، خوف پیدا کرے، جو سنتا ہے اس کو زندگی میں اس لیے فوراً امپلیمنٹ کر لے کہ پتہ نہیں آگے موقع ملے یا نہ ملے، پتہ نہیں میں آگے زندہ رہوں یا نہ رہوں، اور پتہ نہیں کہ مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں کس کیفیت پہ جانا پڑے۔ لہذا فوری اللہ سے ڈر کر عمل کرے تاکہ جتنی بھی زندگی لحظات ساعتیں وقت مقررہ موجود ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں کامیابی کی دلیلیں بن جائیں اور کامیابی کی علامتیں بن جائیں۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ انسان اس کا بھی خیال کرے اور اس بات کو اچھی طرح اپنے پلے باندھ لے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، جناب ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، فرمایا حجبت النار بالشہوات، یہ جو تمہارا دل نہیں چاہتا نا عبادت کرنے کا، مسجدوں میں آنے کا، خطبے سننے کا، نماز پڑھنے کا، عبادت کرنے کا، اذکار کرنے کا، سنتیں پڑھنے کا دل نہیں چاہتا کسی کا بھی، کیوں نہیں چاہتا؟ اس لیے نہیں چاہتا کہ حجبت النار بالشہوات، اللہ نے جہنم میں جانے کے جتنے راستے ہیں نا اس کو دلوں کی چاہتوں کے ساتھ ڈھانپ دیا۔ انسان کا عبادت کرنے کا کب دل چاہتا ہے؟ آپ اپنے بچے کو جتنے بھی سرپرائزز دے دیں وہ اسکول نہیں جائے گا، آپ کبھی تجربہ کر کے دیکھیے، اس کا دل ہی نہیں چاہے گا کہ میں پڑھوں،
उसका दिल ही नहीं चाहेगा मैं मदरसे जाऊं, कॉलेज यूनिवर्सिटी का हो जाएगा, पोजीशन होल्डर हो जाएगा, मगर वो कहेगा काश आज मैं छुट्टी कर लूं, आज ऐसा करता हूं, मैं टुल्ला मारता हूं, आज मैं नहीं जाता हूं। तो ये सब कुछ इंसान की तबीयत और फितरत का इम्तिजाज है कि वो कुछ करने के लिए तैयार नहीं होता जब तक उसको उसकी चीजों के बारे में इल्म ना हो कि जहां से उसको फवाइद हासिल होंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जहन्नम को इंसान की लज्जतों और इंसान की चाहतों के साथ ढांप दिया है कि अगर आप लज्जतों के चक्कर में रहेंगे, चाहतों के चक्कर में रहेंगे, तो फिर ये सारे के सारे मामलात खैर से मुंतशिर हो जाएंगे। वहुजिबतिल जन्नतु बिल मकारी, और अल्लाह ने जन्नत को ढापा है नापसंदीदा चीजों के साथ के जो बज़ाहिर आपको नापसंदीदा लगती है, लेकिन असल में उसी में क्या है, अल्लाह की तरफ से खैर और आफियत है। अमल जितना करते हैं बज़ाहिर आपको लगता है कि इसका कोई फायदा हो या ना हो, लेकिन हकीकत में इसका बहुत फायदा है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ इसका बहुत बड़ा दर्जा है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ इस फायदे को हासिल करने के लिए हुक्म दिया गया कि इंसान क्या करे, अल्लाह की तरफ रागिब करने वाला और अल्लाह की तरफ बुलाने वाला बने। ये बात करने की वजह यह है कि चूंकि जुम्मे के अहकाम चल रहे हैं और आज का इस सिलसिले की आखिरी कड़ी है, तो यहाँ पर यह बात समझिए कि लोगों में एक रिवाज बन गया है। वो रिवाज ये है कि जुम्मे के अंदर हर दफा एक नया आदमी होना चाहिए, नया मौजू होना चाहिए, नया खिताब होना चाहिए। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से कहीं साबित नहीं, हजरत सहाबा इकराम से कहीं साबित नहीं, खुलफाए अरबा से साबित नहीं, अइम्मा मुफस्सिरीन मुज्तहिदीन से साबित नहीं। अगर इसी तरह दीन फैला हुआ होता या कभी दीन में तरक्की हो सकती होती तो आज दीन कहां से कहां पहुंच जाता। ये जितनी किताबें और जितना दीन आपके पास मौजूद है, ये सब उन लोगों ने किया है जो एक जगह मुसलसल ये काम करते थे। जहां इंतशार आया वहां पे दीन नहीं फैल सका, दीन की इशाअत और तरक्की नहीं हो सकी, दीन के अंदर काम नहीं हो सका। लिहाजा ये जो जहन बन गया कि हर दफा एक नई लज्जत और नया जायका और नया अंदाज और नई आवाज और नया तरीका, ये मशरू नहीं है। इसको हम उन तरीकों में शुमार कर सकते हैं जो दीन के अंदर है ही नहीं। तो इस बात को समझिए कि जो चीजें दीन में है ही नहीं उसकी तरफ जाने के बजाय जो चीजें दीन में मुस्तकिल हैं उनको इख्तियार कीजिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नियामतों की तलब में रहिए और जो कुछ आपको सबक मिलता है वो आप सबक सीखिए ताकि आपसे फायदा हो। आप एक डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए जाते हैं, हर हफ्ते वो डॉक्टर बदल जाए तो आप उसका मुस्तकिल इलाज करते करते परेशान हो जाएंगे। आप कहेंगे मैं जब आता हूं एक नया डॉक्टर होता है, भाई ये एक डॉक्टर क्यों नहीं बिठाते ताकि मेरी तशखीस हो जाए और मुझे फायदा हो जाए। मस्जिदों का मामला भी ऐसा ही है कि जो खतीब और इमाम है ये एक तशखीस कुनंदा है, ये एक ऐसा शख्स है जो मरजुल हयात को शिफा बख्शता है और जिंदगी में होने वाले वो मरज वो अमराज जो रूह को मुतासिर करते हैं उनकी तजरीद करता है, उनकी इस्लाह करता है, उनको सही काम पे गामजन करता है। लिहाजा जब ये हर दफा बदलते जाएंगे तो फिर कैसे दीन पे काम होगा। लिहाजा इसके ऊपर गौर फिक्र कीजिए और इसकी हौसला शिकनी कीजिए। ये जो तरीका लोगों में आम होता जा रहा है, रिवाज पा रहा है, ये बात अच्छा नहीं है। इससे सिवाय दीन में नुकसान उठाने के और कुछ नहीं है और सिवाय तबाही के कुछ नहीं है और सिवाय बर्बादियों के कुछ नहीं है कि आप हर दफा एक नया डॉक्टर लाके बिठाएंगे तो वो क्लिनिक नहीं चलेगा। स्कूल में आपका बच्चा जाए, हर हफ्ते टीचर बदल जाए तो आप अपने बच्चे को उस स्कूल में जाके कंप्लेन करते हैं कि यहाँ तो कोई टीचर नहीं दिखता है, यहाँ तो कोई आता ही नहीं है, हर हफ्ते एक नया टीचर। जबकि आप मस्जिद में कहते हैं कि हर हफ्ते एक नया मुअल्लिम हो जो हमें नए तरीके से सिखाए, क्योंकि पुराना वाला तो हमें पसंद नहीं आ रहा है। तो आपको पसंद तो कोई चीज आ नहीं सकती, इसलिए कि इंसान की जो चक्कर है और चाहत है और मोहब्बत है वो तो जहन्नम के रास्तों की तरफ, वो खैर की तरफ हो ही नहीं सकती। हदीस शरीफ है हुजिबतिन नारु बिश्शहवात, ये जहन्नम को ढापा गया है शहवत जनी के साथ। इंसान की हर ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, तो हर ख्वाहिश पे दम निकलेगा तो वो गैर सही तरीकों की तरफ जाएगा। मैंने आपको ये मिसाल दे दी, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गैर मौजूदगी तक में इमाम रातिब मुकर्रर होता था। हर कोई जाके नमाज नहीं पढ़ाता था, हर कोई जाके खुतबा नहीं देता था। जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद पर होते थे या किसी मकाम पर सफर में होते थे तो तब भी पीछे मुकर्रर होता था कि जी वही साहब होंगे जिनका तकर्रुर किया गया है, दूसरा नहीं पढ़ाएगा। इसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहीहैन की रिवायत है, उम्मुल मोमिनीन को फरमाया कि मुरू अबा बकर अय्युसल्ली बिस्सलाम, जाओ अबू बकर को कहो कि नमाज पढ़ाए, मेरी तबीयत बहुत खराब है। उम्मुल मोमिनीन आयशा ने कहा कि वो रकीकुल कल्ब हैं, उनसे नमाज नहीं पढ़ाई जाती, वो नमाज में बहुत रोते हैं, उनकी आवाज मध्यम हो जाती है, आप उमर को कहिए कि वो नमाज पढ़ाएं। कहा कि जाओ जाके अबू बकर को कहो कि नमाज पढ़ाए।
उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती हैं मैंने हफ्सा उम्मुल मोमिनीन से कहा कि तुम्हारे वालिद कवी हैं, अबू बकर बड़े रकीकुल कल्ब हैं, उनकी आवाज नहीं निकलती, जाके अल्लाह के नबी को समझाओ कि अल्लाह के नबी उमर को कहें कि नमाज पढ़ाएं, मेरे वालिद अबू बकर को ना कहें। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब बात पहुंची तो फरमाया ये तुम कैसी बातें करती हो, ये किस किस्म की बातें हैं कि तुम आन के मेरे पास सिफारिश लेकर आ रही हो कि उमर को आगे करें अबू बकर को ना करें। मैं कहता हूं जाओ अबू बकर को हुक्म करो कि वो जाके नमाज पढ़ाए, जाओ कहो अबू बकर को कि वो ही नमाज पढ़ाए। और फिर अबू बकर जब आगे बढ़े तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसल्ली फरमाई, अपने हुज्जे का पर्दा खुलवाया कि पर्दा खोलो, मुझे दिखाओ नमाज कौन पढ़ा रहा है। तो देखा कि अबू बकर नमाज पढ़ रहे हैं। तो ये एक दर्जा है, एक तकद्दुर है, एक इखलास का मर्तबा होता है। यहाँ अपनी मर्जी और चाहते नहीं चलती। आपकी दुकान में आपके एसोसिएशन में किसी बंदे को लाके हर हफ्ते बिठा दिया जाए और कहा जाए कि भाई आपको देख देख के तो पक गए, अगर आप चाहते हैं आपका कारोबार चले तो हर हफ्ते नया बंदा होना चाहिए, वरना आपकी दुकान तो हम बंद करेंगे, नहीं चलने देंगे। तो आप कहेंगे ये अहमकों की बात है, ये गैर मुनासिब बात है। क्यों? मैं अपना कारोबार तो अच्छा करूं, लेकिन मैं दूसरे की जहां पे अल्लाह के दीन का मामला चल रहा है, अल्लाह की शरीयत की बात चल रही है, उसे अच्छा ना करूं। तो उसे अच्छा करने का तरीकाकार क्या है कि मुरब्बी की तरबियत से फायदा उठाया जाए, ना कि ये कि हर जुम्मे मुरब्बी ही बदल दिया जाए, हर जुम्मे दवाई ही बदल दी जाए। आप मुख्तलिफ दवाइयां एक मर्ज की खाएंगे तो वो जब भी आप शिफा याब नहीं हो सकते। इसका मतलब ये नहीं सारे गलत है, ना मैं कह रहा हूं कि गलत है, मैं आपको मसला समझा रहा हूं कि ये तरीका शरिया में नहीं है कि आप हर जुम्मे बंदा बदल दे, ये तरीका नहीं है कि आप हर वक्त बंदा बदल दे, ये बात मुनासिब नहीं है, ये खिलाफ सुन्नत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका है ही नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को अगर यही मंजूर नजर होता, अल्लाह 1,24,000 अंबिया नहीं भेजता, बल्कि कहता कि हर हफ्ते नया नबी आएगा, चल भाई तुम्हारी बात नहीं सुन रहे, तुम निकलो यहाँ से, दूसरा आ जाएगा, तुम यहाँ से निकलो, दूसरा आ जाएगा। नहीं, अल्लाह ने एक मबूस किया, उसको जिम्मेदार बनाया, उसी से सवाल जवाब होगा। इसीलिए फरमाया कुल्लुकुम मसूलुन व कुल्लुकुम मसूलुन रइयतिही, आप में से हर एक साहब जो है वो इस बात के जवाबदेह है अल्लाह के यहाँ कि उन्होंने क्या कुछ अमल किया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूछेगा और जवाबदेही होगी। तो जो लोग इस सिलसिले को चला रहे हैं वो सब जवाबदेह हैं अल्लाह के यहाँ कि दीन के अंदर अगर कोई इंतशार हुआ तो वो जिम्मेदार है जो ये मामला चला रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ बच नहीं सकते। सीधी सीधी और दीन की बात यही है। बाकी जितने भी हीले और बहाने किए जाएं, चूंकि हमारे यहाँ हियल नहीं है, हमारे यहाँ तावीलात की शरई कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए मैंने आपको दो बातें सीधी सीधी दीन की बता दी। जिसको चाहे जो चाहे अमल करे, जो चाहे अमल ना करे, इससे कोई फर्क नहीं है, लेकिन अल्लाह के यहाँ जवाबदेही बहरहाल होगी और इसका जवाब देना पड़ेगा जिन्होंने ये तमाशे लगाए हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ वो कुछ भी कर ले, उनका जुर्म इतना बड़ा है, अल्लाह के यहाँ जवाबदेही हर सूरत देनी होगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने नबी अलैहिस्सलाम के जरिए सही बुखारी में हमें फरमा रहा है, जनाब अबू हुरैरा हदीस के रावी हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इज़ा नज़र अहदुकुम इला मन फुद्दिला अलैहि फिल माली वल खल्क़ि फलयंजुर इला मन हुवा अस्फला मिन्हु। ईद की नमाज हो या जुम्मे की नमाज हो, इज्तिमा में हर किस्म के लोग आते हैं। एक आदमी बड़ा अच्छा आता है, एक आदमी मुतवस्सित आता है, एक आदमी मुस्तहिक आता है। फरमाया कि जब तुम्हारी नजर ऐसे आदमी पे पड़ जाए कि जो साहिबुल माल हो, तो तुम उसको भी तो देखो ना जो मुस्तहिक है। सिर्फ ये ना देखो कि यहाँ पे बड़ा आदमी आया है, बल्कि उसको भी देखो जो मुस्तहिक है। ये तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है। तो इंसान को चाहिए कि अपनी निगाहों की भी हिफाजत करे, अपनी दिल की भी हिफाजत करे, आमाल स्वालिहा की भी हिफाजत करे। यही उसके लिए कामयाबी और कामरानी की दलील है। और आखिरी बात क्या है, अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं, अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फीमा यरवी अन रब्बिही अज़्ज़ा व जल्ला, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से वो रिवायत करते हैं, गोया कि हदीस कुदसी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का फरमान भी है, फरमाया क़ाला इन्नल्लाह कतबल हसनात व सय्यिआत, अल्लाह ताला ने अच्छाइयां और बुराइयां दोनों को मेंशन कर दिया। सुम्मा बय्यना ज़ालिका, फिर हर एक को वाज़ेह कर दिया। वमन हम्मा बिहसनतिन फलम यअमलहा कतबहल्लाहु लहु इंदहु हसनतन कामिला, एक आदमी अच्छाई का इरादा करे, अभी अच्छाई की नहीं है लेकिन अच्छाई का इरादा किया है, अल्लाह के यहाँ वो नोटेड हो जाती है कि बंदा अच्छाई का इरादा कर चुका है। फ़इन हुआ हम्मा बिहा फ़अमिला, अगर उसने अच्छाई के इरादे के बाद उस पर अमल भी कर लिया, कतबहल्लाहु लहु इंदहु अशर हसनात, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ वो एक अच्छाई 10 गुना लिख दी जाती है। इला सबइमियाति ज़िअफ़िन, उस अच्छाई को 700 गुना तक बढ़ाया जाता है। इला अज़आफ़िन कसीरा, और वहां से मजीद आगे कर दिया जाता है। वमन हम्मा बिसय्यतिन, जिसने बुराई का इरादा किया, फलम यअमलहा, और उसके ऊपर अमल नहीं किया,
कतबह अल्लाहु लहु इंदहु हसनतन कामिला, उस बुराई का इरादा करने के बावजूद बुराई ना करने पर अल्लाह के यहाँ एक अजर लिख दिया जाता है। फ़इन हुआ हम्मा बिहा, अगर उसने इरादा किया फामिलाहा, और उस बुराई को अमल का जामा पहना दिया, कतबह अल्लाहु लहु सय्यअतन वाहिदा, तो अल्लाह के यहाँ उसके लिए एक बुराई लिखी जाती है। तो जब हम अच्छाई का इरादा करते हैं, दीन की बात सुनते हैं, दीन को सीखते हैं, दीन को समझते हैं, तो हम इरादा करें इंशाअल्लाह कि हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो इंशाअल्लाह सवाब उसी वक्त मिल गया। और अगर अमल किया तो 700 गुना से अनलिमिटेड की तरफ आप चले जाएंगे। और अगर आपने बुराई का इरादा किया तो आपको कोई मसला नहीं, लेकिन अगर बुराई की तो एक बुराई का गुनाह मिलेगा। लेकिन आपने बुराई का इरादा करके बुराई को नहीं किया तो ना करने पर भी अल्लाह की तरफ से नेकी मिलेगी। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एजाज और अल्लाह का इकराम और अल्लाह की तरफ से मेहमान नवाजी है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपनी इस्लाह करें, जुम्मे के खुतबों को जुम्मों का हक अदा करने की तौफीक बख्शे, जो कुछ सुनते हैं उस पर अमल करें, एक कान से सुन के उसी कान से बाहर निकालने के बजाय जो कुछ सुनते हैं उस पर अमल करें, ताकि कामयाबी और कामरानी हमारा मुकद्दर हो जाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं, रब्बे जुल जलाल मुझे आपको हम सबको कमा हक़्क़हू मुकम्मल शरिया पे मजबूत अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हादा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैत व ला मुअतिय लिमा मनअत व ला यनफउ ज़ल जद्दि मिनकल जद्द। अम्मा बाद, खुतबतुल जुमा के अंदर जो आखिरी मसला बाकी है वो खुतबतुल हाजा का है। खुतबतुल हाजा क्या है? ये जो अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु पढ़ते हैं, इसको हदीस में खुतबतुल हाजा कहा गया है। हाजत कहते हैं जरूरत को, खुतबा कहते हैं खिताब को। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कभी भी लोगों से खिताब करते उससे पहले ये खुतबा पढ़ते थे, चाहे ईद का मसला हो, चाहे जुम्मे का मसला हो, चाहे निकाह का मसला हो, चाहे कुसूफ खुसूफ का मसला हो, चाहे कोई भी बात हो, पहले ये खुतबा पढ़ते थे। इस खुतबे के अंदर अल्लाह की हम्द बयान की गई है, अल्लाह से माफी मांगी गई है, इस्तग़फ़ार किया गया है, अल्लाह से इस्तिआनत और मदद तलब की गई है, और उसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पढ़ा गया है। उसके बाद 3 आयतें पढ़ी जाती हैं, जिस पहली आयत में कहा गया अल्लाह से डरो जैसे डरने का हक है, इख्तिताम में जिंदगी तक डरते रहो। फिर दूसरी आयत पढ़ी जाती है, ईमान वालों अल्लाह से डरो जैसे डरने का हक है, जबान से सच्ची दुरुस्त सही बात कहोगे तो अल्लाह तुम्हारे गुज़िश्ता गुनाह माफ करेगा। तीसरी आयत पढ़ी जाती है, लोगों अल्लाह से डरो, समझो कि अल्लाह ने तुम्हें आदम और हव्वा से पैदा करके जमीन में फैला दिया। अब अल्लाह ये चाहता है सिला रहमी करो, तक़वा इख्तियार करो, गुनाहों से बचो, मेलजोल इख्तियार करो और अपनी इंगेजमेंट को मजबूत करो, अपनी इंटर्नशिप को मजबूत करो। तुम लोगों से ताल्लुकात को बेहतर तरीके से अस्तवार करो। अम्मा से मिलना, अब्बा से मिलना, अब्बा से मिलना, अम्मा से नहीं मिलना, इससे मिलना, उससे नहीं मिलना, ये सब तमाशे खत्म करो, सिला रहमी को आम करो। फिर एक हदीस पढ़ी जाती है जिसके अंदर कहा गया फ़इन्ना खैरल हदीसी किताबुल्लाह, बेहतरीन किताब अल्लाह की किताब है जिससे जुम्मे का आगाज होता है और जिसको जुम्मे में पढ़ पढ़ के सुनाया जाता है। अब बेहतरीन हिदायत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीका मुस्तकीमा फिल हदीस है, जिसको आप हदीस शरीफ के नाम से जानते हैं और सुनते हैं और समझते हैं। ये पूरा खुतबे का खुलासा है। उसके बाद आखिर में कहा जाता है कि जो नित नए उमूर निकालेगा वो बिदअती उमूर हैं और हर बिदअत गुमराही और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कोई भी बात करने से पहले ये कलिमात कहते थे, इसीलिए इसको खुतबतुल हाजा कहा जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक खुतबतुल हाजा जो मसनून है वही पढ़ना चाहिए। इसमें बहुत से इजाफात करने का आम रिवाज चला है। लोग समझते हैं कि हम इजाफात करेंगे इसको अच्छा लगेगा, या हम कोई नई जिद्दत लाएंगे तो अच्छा लगेगा। जिद्दत आप कभी भी किसी मौके पे भी ला सकते हैं। जहां पर रसूलुल्लाह की सुन्नत का मसला आ जाए वहां सुन्नत को जिंदा करने का मसला है, अहयाए सुन्नत का मसला है।
सुन्नत को उसी तरीके पे जिंदा करने का मसला है जैसे सुन्नत का एहतमाम किया गया। लिहाजा इसमें चाहिए कि इजाफात से और अपनी मनमानी चीजों के इजाफात से या गैर मुस्तनद गैर सही बातों से इज्तिनाब करना चाहिए ताकि इसमें खैर हासिल हो जाए। यहाँ पर मैं एक बात और गुजारिश कर दूं जो मुझे नहीं करनी चाहिए, मगर एक सवाल आया है तो मुझे उसके जवाब में आपको ये बात बतानी जरूरी है कि ये जो मौज़ूआत का सिलसिला होता है ये आप ही के सवाल होते हैं। आपके सवाल आ जाते हैं और हमारे सामने जब वो पेश किए जाते हैं तो हम उनके कुछ बातों का जवाब दे देते हैं, कुछ को बचा के रख लेते हैं, फिर जुमे में आहिस्ता आहिस्ता जिक्र करते हैं। अब चूंकि हमारी फील्ड ही हदीस की है और फिक़्हुद्दीन की हमारी फील्ड है तो उसमें कुछ चीजें तशरीह तलब होती हैं जिससे नुकात निकलते जाते हैं और तशरीहात होती जाती हैं। तो ये जो जुमे का सिलसिला पूरा था ये भी कुछ लोगों के सवालात पर मबनी था। जिन्होंने सवालात किए तो उनके जवाबात देते देते जुमे के पूरे मसाइल आपने सुन लिए। अल्हम्दुलिल्लाह जो आपने खुतबतुल जुमा या किताबुल जुमा या जुमे के मसाइल के अंदर जो बातें गुज़िश्ता जुमा में सुनी है ये पूरी सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन नसाई, सुनन अबी दाऊद, इब्ने माजा और सुनन तिरमिजी का मुलख्खस है। ये आपने कुतुब अरबा का मुलख्खस सुन लिया है। तो ये जो कुतुब सित्ता जिसको आप सासित्ता कहते हैं ये उसमें किताबुल जुमा का पूरा इख्तिसार अल्हम्दुलिल्लाह आपने सुन लिया और जो कुछ उसमें चीजें बयान की गई वो आपने मुख्तसर वक्त में जान ली। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो कुछ हम बयान करते हैं अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला जब तक जिंदगी है कुरान और सुन्नत की तरवीज में लगे रहने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब के लिए आसानी और खैर का मामला फरमाए।